Hello students, our today's lecture is on US hegemony in world politics. So first we'll go with the meaning of this word hegemony. This means dominance. So our today's lecture is on USA's dominance in the world politics. After the Cold War, this was an obvious thing that USA will be the supreme power and USA will lead the whole world. And that era was known as US dominance or a unipolar world. Unipolar means single pole. So the rise of new Gulf War order from the first Gulf War to USA led invasion of Iraq. So अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो न्यू गल्फ वॉर फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे एंड यूएस ने किस तरह से इराक पर इन्वेजन अटैक किया था उसके बारे में. द नेचर ऑफ यूएस डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेजमनी. यूएसए की क्या नेचर रही है, किस तरह से उसने एक्शंस किए हैं, किस तरह उनकी एक्टिविटी रही है हेजमनी में. फाइनली वी टर्न टू सी देयर आर चैलेंजेस टू दिस हेजमनी. इतने पावरफुल होते हुए भी यूएसए को कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं. सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर बिगिन विद 3 nouns, that is Aisha, Jabu and Antri. These people are having their different stories. Aisha is the one who had lost her leg in 2003 missile attack and she wanted to be a doctor if her country permits her to go out and if another country accepts her. Next is Jabu. Jabu is the one who is very much interested in paintings and he paints very well, but his father wants him to do MBA. Andrei lived in Australia. He is an immigrant of Russia and he loved to wear blue jeans. But his mother always get annoyed to him when he wear jeans and go to church. She wanted him to stick to their tradition. Of the word America to the reference the United States. So America word refer to United States of America, but it may also useful to remind ourselves that the expression America covers the 2 continents, North and South America, and that the US is only one of the countries of the American continent. So USA is having 2 continents, North and South. In North, there are 23 different countries and Cuba is part of them, and in South, America is having 13 countries, Brazil, Colombia, French, etc. the part of that. Now we are going with the chapter beginning of the New World Order. So New World Order. New World means नई दुनिया. नई दुनिया in which terms? In terms of politics. It would appear that US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international sense. So जब पूरी दुनिया यूएसए के कंट्रोल में आ गई थी तब भी कुछ बातें थी जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी. सो फर्स्ट इज़ द वन, जब यूएसए को पावर मिली थी वो पावर उसे तब 1991 में नहीं मिली थी, उसको वो पावर पहले ही मिल गई थी. Some aspects of US hegemony did not emerge in 1991. कुछ aspects US hegemony के 1991 में नहीं आए थे. But in fact, go back to the end of Second World War in 1945. तो वो aspects, वो superiority के aspects कब आ गए थे? 1945 में आ गए थे. चाहे USA के पास पावर आ गई थी, but वो hegemonic पावर की तरह behave नहीं कर रहा था. Second, the USA did not start behaving like the hegemonic power right from 1991. तो 1991 से उसने start नहीं किया था. So now we are getting into the chapter actually. कैसे US की hegemony prove हुई कि yes it is the ultimate powerful super power, और क्यों हम सभी USA को follow करते हैं. क्या ऐसा रीज़न है जो हम वेस्टर्नाइज करते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हेयर वेस्टर्नाइज मीन्स the culture which we are following, that is USA culture. Okay. In August 1990, Iraq invaded Kuwait. 1919 अगस्त में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया. बहुत ज़्यादा इस पे अटैम्प्ट्स किए डिप्लोमेट्स ने कि वो उन्हें मना सके और उन्हें बोलें कि वहाँ से आप कुवैत. बहुत सारे डिप्लोमेटिक वेज के थ्रू इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को समझाने की कोशिश की गई कि वो कुवैत को वैकेंट कर दे, बट वो मान नहीं रहे थे. यूएन ने भी बहुत कोशिश की. देन यूएन आया यूएसए के पास में, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के पास में, एंड उस वक्त जॉर्ज बुश ने एक ऑर्डर पास किया
द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें क्या था, पूरी दुनिया में से 34 कंट्रीज़ ने अपने फोर्स भेजी थी। एंड कितने अमाउंट थी उसमें, कितने सोल्जर्स थे, ट्रूप्स कितने थे, 6,60,000 ट्रूप्स थे। ठीक है, ट्रूप्स माने यहाँ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंड उस वॉर को क्या नाम दिया गया, जो यूएसए, यूएन और बहुत सारी 34 कंट्रीज़ ने मिलके इराक के अगेंस्ट लड़ा था, द फर्स्ट गल्फ वॉर। However, UN operation which was called Operation Desert Storm, तो UN का जो ऑपरेशन था उसको बोला जा रहा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, एंड जो USA का ऑपरेशन था उसको बोला जा रहा था द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो जब वॉर हो गई तब यूएन ने देखा कि यूएन की जो कॉलोनेशन हुई थी उसमें से 34 कंट्रीज़ को लगाकर जो कॉलोनेशन हुई थी उसमें से 75% फोर्स कहाँ से आई थी, यूएसए से आई थी। जो इराक का प्रेसिडेंट था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था यूएसए से, और उसने कहा था दैट द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, कि वो ऐसा कुछ करेगा जो जितनी भी आज तक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो उससे सबसे बड़ी लड़ाई होगी। एंड जो द फर्स्ट गल्फ वॉर थी उसमें यूएसए ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, और बताया गया था कि वो टेक्नोलॉजिकली दुनिया से कितने आगे हैं। उस टाइम पर उन्होंने वो सब चीज़ें यूज़ की थी जो आम इंसान सोचता भी नहीं था या उनके सोच से परे था। दैट वाज स्मार्ट बॉम्ब्स। और उस स्मार्ट बॉम्ब्स वाली लड़ाई को एक तरह से कंप्यूटर वॉर भी कहा जा रहा था। एंड इसीलिए एक वीडियो गेम डिज़ाइन की गई ताकि लोगों को पता चले कि जो यूएसए ने लड़ाई लड़ी थी वो किस तरह की थी, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की थी। उसी गेम की वजह से यूएसए को नियरली काफ़ी सारा पैसा मिलता था, जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, और ये सब पैसे यूएसए कहाँ यूज़ करता था, कहाँ स्पेंड करता था, अपनी वॉर मेंटेनेंस में। वॉर मेंटेनेंस मीन्स अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जितना भी उनको सामान चाहिए, अपने सारे अपरेटसेस को मेंटेन करने में, एंड दूसरा लड़ाई लड़ने में। मूविंग टू द अदर पॉइंट ऑफ द चैप्टर, द क्लिंटन ईयर्स। चाहे जॉर्ज बुश ने द फर्स्ट गल्फ वॉर जीती थी, बट देन एज वेल वो 1992 में अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए थे। एंड 1992 में कौन आया था, बिल क्लिंटन। एंड उसके बाद में 1996 में वो दोबारा फिर से अपने इलेक्शंस जीते और 8 साल की प्रेसिडेंशियल उनकी मेंटेन रही। जो जॉर्ज बुश थे वो हार्ड हेजेमनी में बिलीव करते थे, एंड जो बिल क्लिंटन है वो सॉफ्ट हेजेमनी में। तो स्टूडेंट्स, हार्ड हेजेमनी क्या होता है, मिलिट्री फोर्स वॉर्स में जो इन्वेस्टमेंट करे वो हो गई हार्ड हेजेमनी। एंड सॉफ्ट हेजेमनी मीन्स जो पीस मेंटेन करके रखे, डेमोक्रेसी में बिलीव करे, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है उन सब चीज़ों में बात करे, वो हो गई हमारी सॉफ्ट हेजेमनी। दिस वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। सो बिल क्लिंटन किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड, rather than on hard politics like military powers. The most important episode occurred in 1999 in response to Yugoslavia actions, the predominantly Albania population in province of Kosovo. The air force of NATO countries, led by US, bombed target around Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan and stationing of NATO force in Kosovo. Like I have explained you earlier that George Bush was interested in hard hegemony and Clinton was interested in soft hegemony. So then as well 1919 में क्या हुआ कि यूगोस्लाविया के ऊपर एक्शंस लिए गए। Now we learn about USA military actions. So जो USA military actions थे क्लिंटन ईयर्स में, वो नॉर्मली बॉम्बिंग करते रहते थे कीनिया, नैरोबिया, दर इस्लाम, तंजानिया में। और जो सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग की गई थी वो 1998 में की गई थी। ये बॉम्बिंग क्यों की जाती थी, अलकायदा की वजह से। अब अलकायदा कौन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक आइडिया से इन्फ्लुएंस है। Within a few days of bombing, President Clinton ordered Operation Infinite Reach, a series of cruise missile strike on Al-Qaeda terrorists against in Sudan and Afghanistan. तो उन बॉम्बिंग के बाद में 1998 के बॉम्बिंग के बाद में अमेरिका ने एक और अपना ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर का नाम क्या था, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। और इसमें क्या था, बहुत सारी मिसाइल्स सुदान एंड अफगानिस्तान की तरफ टारगेट की गई थी।
चाहे वो मिसाइल्स टेररिस्ट के लिए थी, बट कुछ एक मिसाइल्स सिविलियंस की तरफ भी टारगेट हो गई थी, जिसकी वजह से आम लोगों की बहुत. नाउ वी आर गेटिंग टू द बिगेस्ट टॉपिक, बिगेस्ट hit, biggest terrorist attack on American land. So here you can see a newspaper clipping. So यहाँ पे क्या हो रहा है, that one building is in fire and another is in the smoke, and what is written on that clipping, US attacked, hijacked jet destroyed twin tower and hit Pentagon in a day of terror. Fine. So what happened, read it out, let's. तो 19 हाईजैकर्स आए थे डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में से, और उन्होंने हाईजैक किए थे अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स. और फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी उन्होंने एयरक्राफ्ट्स हाईजैक किए थे वो सभी के सभी यूएसए की जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनके अंदर ब्लू कर दिए थे. ब्लू मीन्स उनके अंदर उड़ा दिए थे, उनके अंदर लाइक बर्स्ट करवा दिए थे, क्रैश करवा दिए थे. सो ये जो आग है, ये जो धुआं है, किसकी वजह से है, इन दोनों बिल्डिंग्स में एयरप्लेन्स को क्रैश किया गया था. दिस इमेज. What are those people going to do? And these important towers or buildings were North and South Towers of World Trade Center in New York. न्यूयॉर्क में दो बिल्डिंग्स, उनकी दो इम्पॉर्टेंट जो टावर्स थे, नॉर्थ एंड साउथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ बर्स्ट किया गया. थर्ड, पेंटागन बिल्डिंग इन वर्जीनिया वेयर द यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट इज हेडक्वार्टर्ड. थर्ड एयरक्राफ्ट गया वर्जीनिया में जहाँ यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट था. फोर्थ, कैपिटोल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस केम डाउन इन द फील्ड पेंसिल्वेनिया. फोर्थ या पेंसिल्वेनिया की यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग में, द कैपिटोल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस, क्योंकि उसका टारगेट इतना अच्छा नहीं था और वो फील्ड में आके गिर गया था. तो ये सारे इवेंट को क्या नाम दिया गया, 9/11. नियरली 3000 से ज़्यादा लोग मर गए थे. एंड ये जो अटैक है ये कंपेयर किया जाता है जापान अटैक ऑफ पर्ल 1941 के साथ में. बहुत ही ज़्यादा स्वेयर अटैक था. ऐसा अटैक आज तक कभी भी यूएसए के लैंड पे नहीं हुआ था सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री 1976 में यूएसए बना था, तब से लेकर अब तक ऐसा अटैक नहीं किया गया था या हुआ ही नहीं था. सो यूएसए ने आंसर देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया. वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट था और बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था. सो हुआ क्या, as a part of its global war on terror, the USA launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind this attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. तो इसमें कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लमेटिक किस्से भी हैं. तो यूएसए ने क्या किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दिया था. तो इसमें जितने भी लोग, स्पेशली इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट किया गया था, कि जितने भी अलकायदा के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं सबको अरेस्ट किया गया था. एंड उनको सीक्रेट प्लेसेस पे ले जाकर रखा गया था. उनको बताया ही नहीं जाता था वो खुद कहाँ लेके जा रहे हैं. एंड किसी को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं होती थी. जो उनकी कंडीशंस थी उन प्रिजनर्स की, हमें प्रिजनर्स नहीं बोलना चाहिए, बट देन एज वेल वी हैव टू. तो जितने भी वो प्रिजनर्स थे, जितने भी इन लोगों को उन्होंने एनस्लेव किया हुआ था, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. एंड इवन यूएन उनका मेंबर है, नेटो का मेंबर होते हुए भी उस तक के रिप्रेजेंटेटिव्स को परमिशन नहीं थी कि वो उन यूएसए के कैप्चर्ड लोगों को मिल सके. यूएसए ने बहुत ही ज़्यादा ये ब्रूटल सर्च की थी और पूरी दुनिया में की थी. एंड गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं था किसी को भी अरेस्ट करने से पहले. सो नाउ गेटिंग ऑन इराक इन्वेजन. जब यूएन ने यूएसए के साथ में लड़ने से मना कर दिया था, तो यूएसए के साथ में 40 और कंट्रीज़ ने आकर कोलिजन किया था. सो ये लड़ाई हुई क्यों थी, क्या रीज़न था इस लड़ाई के पीछे. इस लड़ाई के पीछे रीज़न ये था कि ऐसा लग रहा था कि इराक बहुत ही ज़्यादा टेक्निफाइड नई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स बना रहा है. तो उसको क्या बोलते हैं, वेपन्स बनाने को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. सो लग रहा था लोगों को कि WMD हो रही है, बट इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं था. मतलब कुछ ऐसा रिटर्न में नहीं था कि इराक सच में ऐसा कुछ कर भी रहा है. सो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, सद्दाम हुसैन. क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज सारे साथ में होकर लड़ रही थी, तो क्या हुआ, जो इराक की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत जल्दी टूट गई थी. बट इसमें यूएसए को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उनके 3000 से ज़्यादा सोल्जर्स, मिलिट्री पर्सोनल्स मारे गए थे. एंड इराक में 50,000 से ज़्यादा सिविलियंस भी मारे गए थे. Now here's a cartoon, students. Have a look on it. Now we're getting into the meaning of hegemony. So basically the meaning of hegemony is dominance.
In the case of world politics too, countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. So पूरी दुनिया में हर एक कंट्री, हर एक पर्सन ऐसा चाहता है कि उसकी पावर आगे हो, या कोई किसी टाइम पे पावरफुल होगा और आज नहीं है, तो उसके मन में यही चाह होगी कि अब वो वैसी अपनी पावर रीगेन कर ले. दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस. ओके, तो ये पावर किस तरह की है? मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिकल क्लॉट. तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे आज यूएसए ही है. बहुत अच्छी मिलिट्री उनकी है, इकोनॉमिकल पावर उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो काम करते हैं, इवन पूरी दुनिया को सर्व करते हैं. उनके जो मेजर बैंक्स है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, लोगों को लोन्स देते हैं. लोग मीन्स कंट्रीज़ को लोन्स देते हैं, तो दैट मीन्स वो सबसे आगे है. पॉलिटिकल क्लट मीन्स जिस तरह से वो अपने देश को चलाते हैं, उस तरह का जो रूलिंग पावर है वो बहुत अच्छी है. इवन वहाँ के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोगों के लिए सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए सोचते हैं. वहाँ कोई भी बर्डन या कंस्ट्रेन नहीं है लोगों पर. कल्चरल सुपरियॉरिटी, जो उनका कल्चर है वो वैसा ही है, उसमें कोई मिक्सिंग एंड मर्जिंग नहीं हुई है, कोई अमेलगमेशन नहीं हुई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट कोल्ड वॉर टाइम. कोल्ड वॉर कब हुई थी? 1945 to 1901 में हुई थी. देयर वर टू मेजर ग्रुप्स, यूएसए एंड यूएसएसआर. टू कैंप्स में पूरी दुनिया बट गई थी. जब यूएसएसआर हार गया था तो यूएसए पावर में आ गया था, और जब यूएसए पावर में आ गया था उस टाइम पर क्या बोला जाता था? यूनिपोलर. तो यूनिपोलर मीन्स किसी एक पावर की, किसी एक कंट्री के या किसी एक पर्सन के कंट्रोल में सब कुछ होना. So now we are coming to the types of hegemony: hard power, soft power and structural power. So hard power. So hard power, as I've explained you earlier, military capability. military के ऊपर सारा का सारा फोकस, कितनी अच्छी military बन सकती है. So now we are coming to the आयशा story. So आयशा को क्या हुआ था? उसका एक लिम्ब ख़राब हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो रह रही थी यूएसए ने वहाँ पर मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी. So this is an example of hard hegemony, the whole world. So no other power today can remotely match them. So ये तो obvious सी बात है, कोई भी पावर आज अमेरिका का सामना नहीं कर सकती है, उसके सामने उतना पावरफुली नहीं लड़ सकती जितना यूएसए लड़ता है. The US today spend more than of its military capability देन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड. सो दिस मीन्स जो यूएस अकेला है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है एज़ कम्पेयर टू जो 12 और कंट्रीज़ उसके साथ में जुड़े हैं. पेंटागन्स बजट गोज़ इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो पेंटागन बिल्डिंग जहाँ की मैंने पहले बात की थी, वहाँ का जो बजट है वो मैक्स टू मैक्स कहाँ जाता है? मिलिट्री रिसर्च में. क्वांटिटेटिव गैप बहुत ज़्यादा है, किस में? सब में. पूरी दुनिया और यूएसए में क्वांटिटेटिव गैप बहुत ज़्यादा है. यूएसए की जो सोच है वो बहुत आगे है. यूएसए आज रिसर्च के अगर टर्म्स में मैं कहूँगी तो बहुत ही ज़्यादा आगे है. यूएसए इन्वेजन ऑफ इराक रिवील्ड सेवरल अमेरिकन वर्नरेबिलिटीज़. अब यूएसए ने जब इराक पर इन्वेड किया था, अटैक किया था, तभी पता लग गया था कि यूएसए कितना आगे है, यूएस के पास कितनी ज़्यादा पावर है. स्टूडेंट्स, kindly don't make this mistake by writing USA instead of US. So write US. USA is something else. Now the structural power. So पहले हार्ड पावर थी आयशा वाली की, मिलिट्री अटैक्स हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लेग जो लिम्ब है वो चला गया है. Now we coming to the structural power. So think about जब्बू. सेकेंड नोशन, इट emerged फ्रॉम द पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी कर रहे हैं. वर्ल्ड ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिगार्ड्स हेजेमनी और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट. सो ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए, इस तरह की पावर चाहिए जो सब पर डोमिनेट हो. डोमिनेंट मीन्स असर डाल के रखे. The hegemon must possess both the ability and the desire to establish certain norms for order and must sustain the global structure. अब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की हेजेमनी कैसे मेंटेन रहेगी, कैसे वो हेजेमॉन रहेगा? अगर वो अपने नॉर्म्स और अपने ऑर्डर्स पे पक्का रहे, 1. नंबर 2, पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर पे वो वहाँ रहे, ठहरे, लोग समझे, सुने, माने. हम आज यूएसए के पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो डोमिनेंट है, नंबर 1. दूसरा, उनका जो कल्चर है हमारे कल्चर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. तो यहाँ पर क्या हो गया? सस्टेन ग्लोबल स्ट्रक्चर. द रोल played by the USA in providing global public goods.
that can be consumed only by one person without reducing the amount of the good available for someone else. Fresh air and roads are the example of public good. So now we're talking about पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स इस तरह के हो गए कि अगर कोई एक पर्सन उसे यूज़ कर ले तो दूसरे पर्सन के लिए वो थोड़ा ना रहे, 2 कर ले तो थर्ड के लिए थोड़ा ना रहे, 4 कर ले तो 10th के लिए थोड़ा ना रहे. मतलब इस तरह का कोई गुड बताइए कि अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, आप खा लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, तो उस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स पे नहीं पड़ता. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रोड्स. कोई कितनी मर्जी यूज़ कर ले, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है ना रास्ता चला जाता है. सो रोड्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द पब्लिक गुड्स. Another best example is SLOCs. So what is SLOCs? Sea lane of communication. Sea lane of communication means जो समुद्र में रास्ते बने होते हैं उसको बोलते हैं. So अगर SLOs नहीं होंगे तो फ्री ट्रेड्स नहीं होंगे, फ्री ट्रेड्स नहीं होंगे तो लोगों की जो इकोनॉमी है, कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, वो नहीं चल पाएगी. It is the naval power of the hegemon that underwrites the law of the sea and ensures freedom of navigation in international waters. Students, the word naval, that means naval power, navigation power. सो जो नेविगेशन पावर है वो कौन करता है? हेजमॉन करता है, और वो फ्रीडम देता है सभी को कि वो आराम से इंटरनेशनल वाटर पे चल सकते हैं. सो टिल हियर वीव लर्नड अबाउट पब्लिक गुड्स. नंबर 1 रोड्स, फ्रेश एयर, एंड सेकेंड इज़ दी SLOCs. अब हम करने वाले हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जो कि पूरी दुनिया जितना मर्जी इस्तेमाल करी जाए ख़त्म ही नहीं होगी, जैसे कि इंटरनेट. इंटरनेट इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द USA मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट दैट बिगेन इन 1995. तो जो इंटरनेट है वो भी USA की तरफ से आया है. कब आया था? 1950 की रिसर्च में उन्हें पता चला था कि इंटरनेट भी कोई चीज़ हो सकती है. इवन टुडे द इंटरनेट रिलेज ऑन अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, मोस्ट ऑफ देम विच आर ओन्ड बाय US गवर्नमेंट. तो जितना भी हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से हो रहा है. सिग्नल भेजा जाता है सैटेलाइट को और वो आंसर करती है. एंड के साथ में द US शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज एनॉर्मस 21%. तो USA के पास में वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर कितना रहता है? 21% का. और USA ऑल्सो अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 14% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. सो वर्ल्ड ट्रेड में से कितने परसेंट US को जाते हैं? 14%. After all, the Bretton Woods system set up by the US after the Second World War still constitutes the basic structure of the world economy. So जो USA ने World War II के टाइम्स पर जो अपना एक पॉलिसी बनाई थी, सिस्टम बनाया था इकोनॉमी के लिए, वो आज भी बहुत अच्छा है, आज भी वो एक्शन में है. और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है? IMF और WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये प्रूव करती है US की हेजेमनी. सो स्ट्रक्चरल पावर की सबसे अच्छी एग्जांपल है MBA की डिग्री. तो MBA की डिग्री कहाँ से आई है? USA की तरफ से आई है. फर्स्ट बिजनेस स्कूल कहाँ ओपन किया गया था? द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन वर्ल्ड, द वेरिटन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. तो फर्स्ट MBA का स्कूल कहाँ ओपन किया गया था? पेंसिल्वेनिया में. was established in 1981. 1981 में हुआ था. The first MBA course were initiated around 1900. तो first MBA का कोर्स कब बनाया गया था, कब चलाया गया था? 1900 में. The first MBA course outside the USA was established in 1950. So 1950 में MBA के जितने भी कोर्सेज है उन्हें यूज़ किया गया था. This takes us back our South African friend जब्बू. सो ये हमें फिर जब्बू के साथ में रिलेट करती है. जब्बू क्या करना चाहता था? पेंटिंग करना चाहता था, बट उसके फादर क्या बोल रहे थे? MBA करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिनके पास MBA की डिग्री होती है वो उनको जॉब बहुत अच्छी मिलती है. Now moving to the third power, third hegemony, that is hegemony as soft power, and it will be completely wrong if we'll consider USA as a military power.
Other more things are there from which all of the human being in the world are influenced from the USA. Like for example, their culture, their ideologies, the way they are thinking, the way they are living. So all these things are known as manufactured consent under soft power. सो ये तो अंडरस्टैंडिंग ही है, हमें भी वेस्टर्नाइज चीज़ें बहुत पसंद है, हम भी आजकल वेस्टर्नाइज कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, ये सब चीज़ें ये सब फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करने लग गए अपनी कंट्री में। सेकेंडली जो उनके अटायर्स हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस टेल्स अस दैट वी आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम USA in terms of manufacture, in terms of soft power. This notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers. So ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो हेजमनी है, जो सॉफ्ट हेजमनी है, वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चर हेजमनी पर डिपेंड करती है। बट अगर हम कंप्लीट एज अ हेजमनी देखते हैं तो हेजमनी ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती या पावर मिलिट्री, नहीं, दैट मीन्स एंटायर डोमिनेंस। इट कैन बी इन एनी सेंस, लाइक आइडियाज़ चेंज कर दिए जाते हैं। लाइक अगर हम इंडिया की बात भी करते हैं, अगर हम इंडिया को 2 डिकेड्स पीछे देखते हैं, देयर वाज अ वेरी बिग, वेरी आई विल से सफिस्टिकेटेड थिंकिंग रिगार्डिंग फॉर द लेडीज़, बट नाउ अ डेज ईच एंड एवरी लेडी इज़ लिबरेटेड, दे में डू एंड दे में गो एनी वेयर, दे में वेयर एनीथिंग। पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, एक्सोगैमी नहीं थी, अब एक्सोगैमी है। सो अगेन यहाँ हम एंड्री की बात करते हैं कि एंड्री को जीन वेयर करना बहुत पसंद था जब भी वो चर्च आता था, पर उसकी मदर उसको पहनने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मदर की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी, वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे से ज़्यादा सोचते थे। पर एंड्री को जीन पहनना कूल लगता था, उसको ये जीन पहनकर चर्च जाना अच्छा लगता था। चाहे यूएसए के पास में इतनी सारी पावर्स थी, पूरी दुनिया पे उसने कब्जा किया हुआ था, हर एक टर्म्स में, मिलिट्री, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, एवरीथिंग ही हैज़ डन। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर यूएसए को भी कंस्ट्रेंट्स मिल रहे थे, प्रॉब्लम्स मिल रहे थे। लेट्स रीड इट आउट। उन्होंने हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप पे एक बिल्डअप किया हुआ था, टीम पावर सेटअप की हुई थी, जिसके बीच में से जिनके थ्रू गवर्नमेंट का हर एक एक्शन होता था। लाइक अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, पावर को इस तरह से डिवाइड किया गया था कि अगर आपने कोई काम करना या करवाना है तो वो सभी टाइप्स के थ्रू उस पावर को पास आउट होना होगा। लेट्स से कोई ऑर्डर पास करवाना है, तो अगर यूएसए ने कोई ऑर्डर पास करना है तो वो अकेला नहीं कर सकता है, उसको जो और भी उसने कॉलोनेशंस की हुई हैं उनके परमिशन के साथ ही हो सकता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट places high significance brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by execute। तो अमेरिका ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से फ्रेम किया था, इस तरह से डिज़ाइन किया था कि अगर किसी को कोई काम करवाना है, लेट्स से कोई मिलिट्री का एक्शन करना है, तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, हर पेपर वर्क, हर किसी की परमिशन, सिग्नेचर्स, ट्रिटीज़, अकॉर्ड्स के थ्रू ही हो सकता है, बिना रिटर्न वर्क या बिना किसी की परमिशन के नहीं हो सकता है। तो यहाँ आकर थोड़ा यूएसए को कंस्ट्रेन लगता था कि वो फ्रीली कुछ नहीं कर सकता है। सेकेंड, अमेरिकन पावर इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर। अमेरिका की जो पावर है वो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मीन्स पा सकते हैं। थर्ड इज द सुप्रीम पावर ऑफ यूएसए। अब यूएसए की भी एक सुप्रीम पावर थी, दैट वाज नाटो। Third, there is the only one organization in the international system that could possibly moderate द एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन पावर। तो पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो अमेरिकन पावर को कम कर सकती थी, दैट इज़ नाटो। तो अगर फर्स्ट सेकेंड से पास भी हो गया तो थर्ड पर आकर प्रॉब्लम आ जाती थी यूएसए को, क्योंकि जो नाटो था वो कंप्लीट सिक्रेटाइज करता था, बहुत बुरी तरह से हर एक चीज़ को स्क्रूटनाइज करता था, प्रोब करता था, फिर उसके बाद में परमिशन उसे ग्रांट करता था। इंडिया का भी राइवल बन जाएगा। India found itself on the opposite side of divide from US. India's closest friendship during those days, those years, was the Soviet Union.
India suddenly found itself friendless in the increasingly hostile international environment. तो जिस तरह का उस टाइम पे माहौल चल रहा था, वहाँ इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यूएसए वहाँ पर भी उन पर भी कोई ना कोई अटैकिंग वे कुछ भी कर सकता है, वेंडलाइज कर सकता है इंडिया को. India decided to liberate its economy and integrate it with the global economy. India's impressive economic growth rates in the recent years have made the country an attractive economical power for a member of United States. ग्लोबल इकोनॉमी में आने के लिए इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, उसको लिबरेट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ में? ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में. India's impressive economic growth rate in the recent years have made the country an attractive economic partner of a number of countries including the USA. क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी चेंज करने के बाद में इकोनॉमिकल बूस्ट हुआ था, तो इंडिया को एक अट्रैक्टिव पार्टनर बना दिया गया था. वो कंट्रीज़ की लिस्ट में उसे मेंशन किया गया था जहां यूएसए भी थी. अब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस थे किस तरह के? दीज फैक्टर्स रिलेट टू द टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन एंड द रोल ऑफ इंडिया अमेरिका डायस्पोरा. तो ये टेक्नोलॉजिकली बेस्ड थे. सो लेट्स गो विद दैट. First, USA absorb about 65% of India's total export in the soft sector. So USA के पास में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कितना चाह रहा था इंडिया की तरफ से? 65%. 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ इज एस्टिमेटेड टू बी इंडियन रीजन. तो वहाँ पर जो स्टाफ था यूएसए में वो कितने परसेंट इंडिया का था? 35%. 3 लाख इंडियन टू वर्क इन सिलिकॉन वैली. सो 3 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ सिलिकॉन वैली में काम करते थे. 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप आर बाय इंडियन अमेरिकन्स. अमेरिका में जो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स थे वो इंडिया के कितने परसेंट लोगों के थे? 15%. जैसे बाकी सब कंट्रीज़ यूएसए के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, उसी तरह से इंडिया भी बनाना चाहता था. बट जो चॉइस थी ये इजी नहीं थी, और इंडिया के एनालिसिस ने कुछ पॉइंट्स सामने रखे कि अगर इस तरह से अगर यूएसए और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो क्या होगा, या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट, इंडियन एनालिसिस ने ये कहा था कि जितना यूएसए और इंडिया पास में आएंगे या इंडिया यूएसए के पास में जाएगा, उतना ही नुकसान इंडिया को होगा, क्योंकि पता नहीं इन फ्यूचर यूएसए इंडिया का साथ दे या ना दे. Those Indian analysts who see international politics largely in terms of military power and fearful of the growing closeness between India and the USA. So Indian analysts को डर लग रहा था USA और India के relationship से. They would prefer that India maintains a aloofness from Washington and focuses upon increasing its own comprehensive international power. तो वो इंडियन एनालिसिस ये चाहते थे कि वो अमेरिका की बजाय अपनी नेशनल पावर को बढ़ाए. नेशनल पावर से मतलब यहाँ मिलिट्री बढ़ाए. इंस्टीड कि वो यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में अपना कुछ खर्चा करे, अपना कुछ इकोनॉमिकल नुकसान करे, इससे बेटर वो मनी वो अपनी मिलिट्री को सुधारने में इन्वेस्ट करे. सेकेंड, mutual conversions to establish the best possible opinions to itself, opposing the USA, they argue. So वहाँ पर वो कह रहे थे कि अपनी कन्वर्जेंस बढ़ाओ, अपना कुछ करो, इंस्टीड कि आप किसी और के साथ में लगकर कहीं और कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये सब आने वाले टाइम में सिर्फ बेकार होगा, फ्यूटाइल होगा, और इस चीज़ से इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा. तो वो ये चाहते थे, इंडियन एनालिसिस ये चाहते थे कि इंडिया अपना कुछ ना कुछ करे. Third, analysts would advocate that India should take a lead in establishing a coalition of countries from the developing world. So, एनालिसिस ये चाहते थे कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, इंडिया उनके साथ में जुड़कर कुछ अलग करे. Over the time, coalition would become more powerful and may succeed in weaning the hegemony away from its dominating way. So इससे क्या होगा, जब इंडिया और डेवलपिंग कंट्री साथ में जुड़ जाएंगी तो जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और यूएसए की जो हेजमनी है हम उसे ब्रेक कर सकते हैं. सो हाउ कैन हेजमनी बी ओवरकेम. सो यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं हेजमनी के बारे में. दस, द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट. तो जो अभी यूएसए की पॉलिटिक्स चल रही है इसके कोई गवर्नमेंट नहीं है, हेजेमॉन है वो, बट वो हम पे रूल नहीं कर रहा है. इट इज़ जस्ट वी आर फॉलोइंग इट, बट देन एज वेल देयर इज़ अ पॉलिटिक्स. देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉ ऑफ वॉर दैट रिस्ट्रिक्ट बट
डू नॉट प्रोहिबिट। सो कुछ लॉज एंड रूल्स हैं जो हमें रोकती हैं, रिस्ट्रिक्ट करते, बताती हैं कि तुम ये मत करो, बट रोकती नहीं हैं, प्रोहिबिट नहीं करती हैं। इन टर्म्स वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट नो सिंगल पावर इज़ एनी वेयर नियर बैलेंसिंग द यूएसए मिलिट्री। तो यूएसए की मिलिट्री के आसपास कोई भी पावर नहीं है, सो इसीलिए वो सबसे ऊपर है। सो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें यूएसए की हेजेमॉन कम करना है वो कैसे कर सकते हैं? अपनी इकोनॉमी बढ़ाकर, ट्रेड बढ़ाकर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करके। हमें अपनी कंट्री पे वर्क करना चाहिए रेदर देन हमें किसी और के अगेंस्ट या किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने में एक्टिव रहना चाहिए। हेजेमनिक सिस्टम में रहकर अपने देश का भला, अपने देश की डेवलपमेंट करने को कहते हैं बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? दिस इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार रिमूव फ्रॉम डोमिनेंट एज पॉसिबल। तो जितनी भी डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उनसे दूर रहिए, अपनी कंट्री की बाहर मत निकालिए बात कोई भी, और दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री में इंटरफेरेंस करने ही नहीं दिए, जैसे कि चाइना। You might have heard the saying that we now live in global village. आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। इन दिस ग्लोबल विलेज वी ऑल आर नेबर्स ऑफ द विलेज हेड। सो हम सब किसके नेबर हैं? विलेज हेड के। तो यहाँ पर विलेज हेड कौन है? यूएसए। If the behavior of the village head becomes intolerable, we will not have the option to leave the global village. ग्लोबल विलेज के हेड का अगर बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो मनमानी करने लग जाता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है विलेज को छोड़ने की। वी हैव टू बी विद इट, वी हैव टू रेजिस्ट ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस द ओनली वर्ल्ड वी न्यू एंड द ओनली विलेज वी हैव, रेजिस्टेंस विल देन बी द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। तो हमें रहना पड़ेगा, जैसे मर्जी रहे हमें रहना पड़ेगा। So students, that's all for today's lecture. I am done with the third chapter, US hegemony. Thank you so much.